जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, एक तो जो इंडियन आर्मी में जो ट्रेनिंग शेड्यूल है दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन. सो 31 weeks is standard for all regimental center across Indian Army. Out of this 31 weeks, 10 weeks of basic military training is standard. Like a soldier, and he is dressed like a soldier. He speaks like a soldier. That is the main second part. Third, which is the most important part, is the weapon training. The weapon training is primarily 30% of the training content of the 10 weeks. Which primarily includes उसको हथियार के बारे में जानकारी देना, उसको तैयार करना, इस मुकाम पे पहुंचाना कि वो एक अपने पर्सनल वेपन को दैट इज 5.56 इंसास राइफल को एक टारगेट के ऊपर अच्छे तरीके से फायर कर सके. तो हमारा तीसरा फोकस जो है वेपन ट्रेनिंग है. एंड लास्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इज बेसिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इन सच ए गया है. द क्लासेस आर based out in such a fashion that he is able to pick up and subsequently he is able to make his standard of in all these aspects in a gradual manner. He increases, and each day is divided into 10 periods, and 10 periods are mix and match, so he covers all aspects in a little bit fashion. And thereafter there are certain outdoor training activities, there are certain indoor training activities combined with certain training which carried on weeks, and that is standard across the board. कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंटल सेंटर में अगर अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका जो कोर्स कंटेंट है दैट इज सेम अक्रॉस द बोर्ड. उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी आर्म या कौन से कोर के अंदर जा रहा है, उसका जो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है दैट इज ऑफ 21 weeks. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन विच आर्म इज ही ज्वाइनिंग. If he joins the EME corps for in one EME center, he is trained on a particular equipment or a particular vehicle or a particular type of specialization, so that when he goes out from here after his 31 weeks of training on this issue, it's been now second week running, and almost one-to-one, I think probably I would have interacted with 70 to 80% of them. Not even a single person which I have felt. Initially, yes, it is natural that the young boys, they are tend to feel homesick. There's perhaps no time left for that to feel homesick. Other than that, on Sundays, we make an endeavor and effort that we have something known as education branch in our army. So there is an extra class which is given to them in terms of people who are having some problem in communication. There are two concerns to this. First is that we generally, first is the cyber security violations. We are very particular about it. And it is not only that it is for the Agniveers, even in our normal course also, we don't allow smartphones. Because any army establishment, it is a cyber security violation. So that is the first aspect, because they should learn it not only during their training, when they go to the units also, the same thing applies there also. It's a thing of a basic military discipline. Second thing is that we have given them anybody who's having some issue, those numbers of the platoon NCOs, the JCOs, and even the unit officer appointments has been shared with the parents and any next of kin who are available, which they themselves have in the initial part only given that these are the people whom to be contacted. The numbers have been shared to them. Anybody calling, like we keep on receiving calls. Whenever people call, we have given enough freedom. They can speak, and people do speak. And second thing, which every Sunday that excuse is there to speak to their parents. They can, as of now, there is no restriction to call up from their mobile phones, but subsequently we are looking to have a mechanism where we have a series of telephone booth facilities or oblique analog phones where they can be able to actually speak more frequently. So that kind of thing, but in a gradual manner. And second thing is that mobile phones per se, it's a distraction, because their training content is 10 weeks. They have to undergo a lot of, they have to come up to that standard in a short duration of time. It also avoids your interaction. So it prevents, if they're sitting in lines, it is important that they talk to each other and they gel together and they come up as a team. And there's a continuous evaluation over the period of 31 weeks. It is evaluation process has already been designed. It is a laid out procedure which has been given from the army headquarters. So every particular subject or
there is a devised method of assessment. So every individual will have his performance assessment card, and in each test there are different grades of scoring system, starting with super excellent category till fail. So if a person is failing, he gets 0. If a person is super excellent, he gets maximum marks. So there are different types of shades of grades there. So automatically his marks are being evaluated and put in the system, and his merit is being drawn at the centrally at the army headquarters level. It's bound to happen, ma'am, but I think it is not only for them. Everywhere the best has to come up. But I think it is both ways. It is both ways, and something has been designed by the Government of India. So I think that ifs and buts have been taken care of. But this much I can assure that as far as we are concerned, the best of the training will be given and is being given. And the motivation level is far higher than what it was before. So rest is all merit drawn. So nothing more can be actually commented on this. But I think the best will come up and best will become soldiers. Thank you, sir. In Hyderabad with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV. भर्ती की प्रतिक्रिया जो है उसी के बाद इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, और हमने यहाँ पे जबलपुर में हमारे सेंटर में भर्ती होने की कार्रवाई देखी अपने आंखों से। और जो ZRO जबलपुर है, उन्होंने अपनी जो MP के जो हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के जितनी भी भर्ती हुई है वो यहाँ पर हुई है भर्ती। तो उस टाइम हमने देखा कि जिस तरह का उत्साह हमने देखा, ये जो युवा थे यहाँ के, बहुत भीड़ उमड़ के आई थी और बहुत बढ़िया तरीके से और इनके एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे भर्ती की कार्रवाई हुई थी। और इनका पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, फिर मेडिकल हुआ, और उसके बाद इनका जब रिटर्न टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट के बाद अब जब ये फाइनली हमारे पास जो है पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे ARO से हमारे पास पूरे अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं, तो ये 25 दिसंबर से हमारे पास फिजिकली अग्निवीर जो है रिपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो है इनका समय बांटा गया था। ये अलग अलग टाइम पे जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स ने इनको डेट दी थी, उसके हिसाब से हमारे पास आए थे, रिपोर्ट किया इन्होंने। और वो जो 7 दिन का समय था वो इनका इस्तेमाल हुआ बेसिकली इनका ओरिएंटेशन के लिए, थोड़ा सा हेयर कट, जो किट इशू वगैरह, और उस तरह से इनको बेसिकली तैयार किया गया। ओरिएंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी की गई, और 1 जनवरी से इनकी जो है ट्रेनिंग जो है ये प्रारंभ हुई हमारे सेंटर में। जो हमने अभी इन लड़कों में शुरू में देखा है, इनका बहुत ज़्यादा जोश है और ये बहुत ही उत्साहित हैं अपनी ट्रेनिंग को लेकर। मुझे लगता है ये इनमें एक खुद में एक अच्छा करने की भावना है, एक दैट फायर इन द बेली जो कहते हैं वो है इनमें, क्योंकि ये खुद पूछते हैं कि हमारे टेस्ट वगैरह कब होने हैं और डेट्स वगैरह ये अपने में भी प्लान करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं। इसलिए ये इनमें जो जोश देखा मैंने, ये बहुत अच्छा है। और जो मेरे को फीडबैक मिलता है इनके इंस्ट्रक्टर्स से कि पहले के रिक्रूट में और अभी के जो जवान आ रहे हैं हमारे पास, जो रिक्रूट आ रहे हैं अग्निवीर में, को देखा है। और ये जो नया ब्रीड है अग्निवीर्स का, तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है भारतीय सेना के लिए भी, भारत के लिए भी। जो आपने बोला बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोगों हमारे सेंटर में करीब 2300 अग्निवीर्स इन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और इनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हुई है और सिर्फ अभी 8-9 दिन हुए हैं। और आप कुछ अग्निवीर से आपका मुलाकात हुआ, आपने इनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तो मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और पूरा जोश है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 31 हफ्ते जो हम इनको यहाँ ट्रेन करेंगे, हम इनको जो हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैंने सुबह बताया था, इनको एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड और फुली ट्रेंड अग्निवीर बना के आर्टिलरी यूनिट्स में भेजेंगे। रनिंग से लेकर रोलिंग तक, वेपन ट्रेनिंग से लेकर युद्ध की रणनीति समझने तक, ये अग्निवीर दुश्मन को हराने की सारी कलाएं सीख रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में शामिल अग्निवीरों को सैनिकों को मिलने वाली किट भी मुहैया करवाई है। इसमें वर्दी, जूते, बेल्ट, निजी जरूरतों का सामान और बेल्ट शामिल है। इन अग्निवीरों को मिलने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग को खास तरीके से इनका होता है, सुबह 4 बजे इनको उठना पड़ता है और रात के 9 बजे इनके लाइट्स ऑफ होते हैं। तो पूरे दिन में किस प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाती है? अभी इनिशियली अग्निवीर्स का 10 हफ्ते तक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें इनको बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक क्षमता की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल, और उसके अलावा बेसिक फाउंडेशन के ऊपर इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
इस ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीरों को सुबह 4 बजे ही उठना होता है। सारे काम निपटाकर सुबह 6 बजे हर हाल में इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचना होता है। यहां से इनकी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। बीच में 1 घंटे के आराम के बाद अग्निवीरों की बेसिक फाउंडेशन क्लास शुरू होती है। इसमें इनको सेना से जुड़ी बेसिक जानकारी, युद्ध से जुड़ी रणनीतियों की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यहीं पर उन्हें देश के संविधान के बारे में भी बताया जाता है ताकि ये बेहतरीन सैनिक। 6 से 7:30 के करीब इनका पीटी, उसके बाद इनका 8:30 बजे से 2 बजे तक लगभग क्लासेस और इवनिंग में गेम्स और इवन नाइट ट्रेनिंग भी इनका बीच में शेड्यूल्ड है। सो टफ ट्रेनिंग शेड्यूल है बट साइंटिफिकली डिजाइंड है। हम ग्रेजुअली इनको बिल्डअप करेंगे। सेना में शामिल होने आए ये अग्निवीर डिजिटल दुनिया को समझते हैं, इसलिए इनके इंस्ट्रक्टर भी इस बात से खुश हैं कि उनको बेसिक जानकारी पहले से है। राजस्थान के श्री गंगानगर के राकेश भी उन्हीं अग्निवीरों में शामिल हैं जो गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के गुर सीख रहे हैं। अग्निवीर राकेश को पता है कि उनकी ये ट्रेनिंग हर तरह से उन्हें सक्षम बनाएगी, इसलिए भी फर्स्ट बैच के अग्निवीर बनने पर गर्व भी है।